Welcome all our viewers of Bollywood Live to another episode of Siblings Confidential. And today we have got a melodious version of Siblings Confidential. It's going to be full of melody, it's going to be full of charm, it's going to be full of musical notes because we have got two fantastic sisters, Assis Kaur and Didar Kaur, who are both very versatile, very good singers. They complement each other. And we are going to see, besides their singing voices, how they complement each other as sibling duos. We're going to see, we're going to dig into your history. We're going to upload, reveal all your juicy secrets. And let's see Yes. how good you all are as siblings. Whether you earn the hashtag sibling goals by the end of the show. Cool? Okay. Yes. So, anyways, first up, we are going to be asking you all to dive into your childhood memories in our segment called Yade. We will ask you all a bunch of simple questions because this is the starter, this is the appetizer. Ask you all a bunch of simple questions and उसमें आप लोग की childhood जो यादें हैं वो यादें हम ताज़ा करेंगे. Fine? Okay. Yeah. So here goes Yade. The first question is for Assis because I've been told you are elder. So Yeah, but I don't look like. Yeah, okay. What do you mean? Shots fired. Meera, shots fired from the start. Okay. What is this? Shots fired. You'll get your chance to come back. I want to know from you, Assis, what is your first memory of holding your kid sister, Dida? Superb question, huh? Now she'll answer. मुझे कहना नहीं चाहिए बट मुझे ना एक भाई चाहिए था और हमारे घर में भी बहुत क्रेज था कि भाई आ रहा है बिकॉज जब मम्मा गए भी लाइक हॉस्पिटल एंड आई वाज लाइक पीछे से सब भाई आ रहा है तेरा भाई आ रहा है तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे भाई मिलेगा छोटा सा खेलने के लिए और जब वहां से हॉस्पिटल से कॉल आता है कि अच्छा बहन हुई है आई वाज लाइक मुझे नहीं चाहिए ये फेंक दो इसको नाली में फेंक दो Oh my God. That's why I said आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. Yeah. बट जब फिर मैंने इसको देखा आई वाज लाइक अच्छा जब ये पैदा हुई थी इसके सर पर एक भी बाल नहीं था. मतलब अभी इतने लंबे बाल है इसके तो ये क्यूट सी लगती थी तो फिर आपका सच में कॉन्फिडेंशियल सेगमेंट है. कितने राज खोल दिए इसने एक सेकंड में मेरे बारे में. You all have to live up to this start now. Yeah. So I fell in love with her जब ये पैदा हुई मेरी क्यूट सी बहन. और घर वालों ने शुक्र है इसकी बात नहीं मानी और मुझे फेंक नहीं दिया. Obviously नहीं. आज हम ये सेगमेंट नहीं कर रहे होते और हम आपके कैसे कर रहे होते? True. But okay, what is each other's, and you all have to tell me each other's, not your own childhood hobby. I think इसका बचपन से चाइल्डहुड से इसका फ्रेंडशिप का बहुत she was very social since childhood तो उसको नए फ्रेंड्स बनाने का बहुत शौक था. इसको बहुत मजा आता था. इसके साथ मतलब इसके साथ हर साल इसके साथ इसके फ्रेंड्स ऐड ऑन होते रहते थे और मेरे साथ ऐसा नहीं होता था तो मैं जेलस फील करती थी कि ये क्या है मैं हूं ना तुझे क्यों फ्रेंड्स चाहिए ऐसा करके तो शी वाज वेरी सोशल. इसको आई थिंक पता नहीं आदत थी या क्या शी लव्ड इट. अभी भी ऐसा ही है. अभी भी जेलस हो गई. So she's an extrovert. Yeah, true. Yes. Thank you for putting it nicely. And I'm happy that I'm an extrovert. That's my job. I'm here to diffuse the situation. Okay, Assis, you go. आप मेरे साइड हो जाओ ना. आप मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से सीस की साइड. This is not fair. I'm coming to your side. There's a lot of segments left. Filal, let her believe that I'm on her side. I will be coming to you. Oh wow, nice strategy. Okay. So what was Didar's childhood hobby? I think एक आदत इसकी मुझे बहुत तंग करती थी बचपन में. हॉबी तो नहीं कह सकते. इट्स गुड. जब भी हम स्कूल से वापस आते थे तो हमेशा इसको ना घर आके एक टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक होता था. हम 5 और मुझे होता था कि कुछ भी देखना है तो हम में से जो भी कहता था रिमोट मेरा पहला तो उसका हो जाता था रिमोट और उसकी मर्जी का सीरियल चलता था. तो ये मैडम हमेशा पहले बोल देती थी रिमोट मेरा. घर में एंटर और हमने फैक्ट बनाया था घर में एंटर करते ही जो पहले बोलेगा उसका होगा. तुम क्या करते जब बस से उतरते थे तो इतना सा रास्ता मतलब गली से चल के जब घर तक आते हैं तो मैं इसको बातों में लगा लेती थी. मैं मतलब ऐसा वेट करती कि जैसे ही हमने दरवाजा खोला मैं बोलती थी रिमोट मेरा so that she couldn't say रिमोट मेरा. So इसकी एक हॉबी थी ऐसे टीवी सीरियल देखना और उसके साथ बैठकर ये आइसक्रीम खाती थी. इसका रोज का था 2 आइसक्रीम कुल्फी. कुल्फी. Yes. अभी भी है? That was her hobby.
अभी भी हॉबी है, 2 रोज का 2 कुल्फी? अभी कुल्फी अभी मम्मी घर पे अभी बनाते हैं। कुल्फी नहीं होती है, अभी भी जब भी ये कहीं बाहर से आती है तो ये 100% अब श्योर हो चुका है कि रिमोट इसी के हाथ में अब मुझे रहेगा। बोलना नहीं होता, अभी पूरे घर में व्हेन आई सिट फॉर द टीवी, चाहे हम कोई भी देख रहे हो, रिमोट मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली आ जाए, ओके। ऐसे करके ग्लो मैम। अभी सबको पता है वैसे, लेकिन हाँ, लेकिन दीदार हम पांच तो मुझे भी बहुत पसंद है, सो वेरी गुड। आई लव दैट, मतलब मैं रिपीट टेलीकास्ट लवली शो। अगर हमारा एक भाई या बहन और होता तो हम 5 होते, फिलहाल हम 4 हैं। फिलहाल वोटिंग मुंबई हो गया। आप 4 हो? वाओ जी। Okay. Since you all are both singers, I would like to tell you all to tell us कि how many times would you all sing जब TV पे गाने आते थे and फिल्मों के गाने आते थे, तो how many times would you all hear that, see that and start singing the song again in front of the TV or in front of the mirror, practice करते थे? Actually we have a very strict practice शेड्यूल, और मतलब मम्मा हमें सुबह बचपन से ही 4 बजे उठा देती थी। और हम 4 बजे उठकर रियाज करते थे, 4 से 6, और फिर 6 बजे स्कूल के लिए रेडी होना, 7 बजे स्कूल जाना, ऐसा होता था। तो हम सुबह के उठे हुए थके हुए टीवी के साथ हमने कभी नहीं गाया, नेवर। और हम टीवी सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए देखते थे। We never sang along with the song जब भी it was playing on a TV. So yeah, like, और उस पर शाम को भी अलग रियाज करता था। She plays तबला also. अच्छा। एक दिन में 4-4 घंटे का तबले का रियाज करती थी और गाने का रियाज, तो ऐसे हम कितना करना फिल्म के साथ कभी नहीं गाते थे। ओके, वो तो आई एम श्योर, लेकिन आप लोग के गाने सुन के बाकी बच्चे टीवी के सामने वो गाने गाते हैं। यस, क्या बात, वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट वन इज हु वाज मोस्ट स्टूडियस एट होमवर्क? अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें? आपने कहा कि ये काफी ज्यादा सोशेबल थी, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग तो शायद आप होमवर्क में ज्यादा ध्यान देती थी। मतलब सच बताना है क्या? हाँ, सच बिल्कुल बताना है, झूठ नहीं बोलना है। See, अभी तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप कह सकते हो कि मैं स्टूडियस हूँ। लेकिन जब मैं छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी, तो मम्मी को ऐसा लगता था कि ये काउंटिंग भी लिख लेगी क्या? मतलब मुझे मम्मी शी गेट्स अमेज्ड, अभी वो मतलब शी गेट्स अमेज्ड कि तू सीए कैसे बन गई बेटा? मतलब मुझे ऐसा डाउट होता था कि तू काउंटिंग 1 2 3 भी लिख लेगी क्या? लेकिन ये हमारी बहन बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब इसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर ये एग्जाम से बस पहले पढ़ती है और हमेशा इसने टॉप किया है। टॉप तो वैसे हम चारों भाई बहन ने किया है, लेकिन ये बहुत कम पढ़ के भी टॉप ही करती थी। एक्चुअली बचपन में मुझे भी याद है, मम्मा मतलब इसके पीछे बैठती थी, प्लीज लिख ले, डॉट डालिए, इसको 1 लिखना है, इसको 1 लिखना है। बहुत, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, सो आई कांट से। मुझे याद है तू छोटी थी ना। When she became a chartered accountant, so तो वो सब दाग धुल गए मेरे। She handles all the numbers. सारे पुराने गलतियां माफ। Okay, who was better at sports? No, both of us were zero. Both zero. Literally, total a big zero, big fat zero कह सकते हैं। मुझसे भागा भी नहीं जाता था, बस लाइक यार मैं ढूंढती थी स्पोर्ट्स डे पे भी कुछ गवा लो यार, मतलब मुझसे भगाओ, कुछ भगाओ। चलो, I can understand that. इसलिए आप लोग सिंगिंग में गए। Finally, who used to get into more trouble at school? No one. We're very good students. आप दोनों ऐसे फालतू में पचड़े में पढ़ते ही नहीं थे यार। इनफैक्ट मैं तो अपनी फ्रेंड्स को भी, मतलब मेरा इतना बॉसी नेचर था कि मेरी फ्रेंड्स को भी अगर कोई तंग करता था, किसी लड़के से लड़ाई होगी, तो मैं उनको भी जाके सीधा करती थी कि ए वो मेरी फ्रेंड है, पंगा नहीं लेगा। तो we were very sorted at school. मतलब खुद भी सीधे, दूसरों को भी सीधा रखते थे। और नहीं तो क्या। दूसरों को डंडे से सीधा रखती थी, सिर्फ डंडे से। तो ये थी हमारी यादें तो काफी दिलचस्प थी। Second segment, spill the sibling secrets. Now it gets more interesting. Okay. First up, you all need to tell us the annoying nickname you all had for each other. मेरा नाम तो ऑलरेडी छोटा है सर, असीस, तो इससे छोटा नहीं कर सकते हम। And my nickname इसने ही दिया है, that is not annoying. हाँ। So you all मतलब I call her दारे, I call her दारे, धारा, दिदार, everything. हमारे घर में निकनेम्स का रिवाज ही नहीं है एक्चुअली। ओके, सो निकनेम मतलब कि ठीक है, तो वहाँ पे तो सीक्रेट है। क्रॉस्ड, बच गए हम दोनों। थैंक्स टू पेरेंट्स। सबसे बड़ा चाइल्डहुड में मिस्चिफ जो आप लोग ने किया था और ऐसा लगा कि भाई अभी तो गया, अभी तो बैंड बज गई, इससे मैं तो बचने नहीं वाली, ऐसा कौन सा चाइल्डहुड मिस्चिफ?
कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा। आप लोग इतने अच्छे थे? हम बहुत अच्छे थे, हम अभी भी अच्छे ही हैं एक्चुअली। अभी तो अच्छे हैं ही। मतलब अगर मैक्सिमम करना भी होगा तो बेल बजाकर भाग गए होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो ये भी याद नहीं, हमने नानी घर किया हुआ हमने एक बार। मुझे नहीं याद है। इसमें आप लोग कभी पकड़े नहीं गए थे? नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, इसने पकड़ा गया तो डेफिनेटली याद रहता। हाँ, मुझे हम नहीं बहाने एक्चुअली हमारी नानी का खेत है, तो हम बहाने मार मार के वो जरूर करते थे कि यार नानी प्लीज ट्यूबवेल में नहाने हाँ, जाना है। उसका इतने इतने बहुत होते थे मजा हम आता छोटे था। छोटे, तो वो हमारी सबसे मस्ती वाला टाइम होता था यार। बट हमने ऐसे किसी को तंग वंग नहीं किया, लाइक प्रैंक्स नहीं किए, टाइम ही नहीं होता था यार लाइफ में। प्रैंकस्टर नहीं थे आप लोग? या ओके। ये आप लोग अभी आप लोग को बताना है। I really need a truthful answer in this one. किसके ज्यादा बॉयफ्रेंड्स या क्रशेस थे? मेरे तो 0, ना क्रश ना बॉयफ्रेंड। क्रश मेरे बहुत रहे। क्रश मतलब क्रश का कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको खुद अकेले कोई पसंद करना होता है। एक तरफा मेरे तो क्रश भी नहीं बात ही थे। कुछ अलग है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम जो कोई पसंद आया था वो राजीव खंडेलवाल बहुत पसंद आया था। हाँ वो तो सेलिब्रिटी हो मतलब गया। मैं तो नॉर्मल बस ग्रोइंग अप नॉर्मल लोगों की बात कर रहा था। वो तो सेलिब्रिटी हो गया। मुझे लगता था मतलब कैसे पसंद आ जाते हैं आप, मतलब कैसे पसंद आ रहे हैं। मेरे होते थे क्रश। आपके होते थे? काफी होते थे। तो ऐसा कोई क्रश काफी मतलब ऐसे होता था, हर फिल्म के बाद बदलता था एक हीरो नहीं, नॉर्मल नहीं होते मुझे क्रश। अच्छा, मतलब ये आप लोग को नॉर्मल लड़के नहीं पसंद है, या तो फिल्मी हीरो या तो राजीव खंडेलवाल, फिल्मी हीरो या स्टार्स लाइक या अभी राइट नाउ इट्स दिस इज कौन सा आता है हमारा ये यार जिसका हम बहुत वेट कर रहे हैं सीरीज का, द प्रोफेसर वाला। अरे यार वो भी प्रोफेसर क्रश है आजकल। यस वो तो सभी का क्रश है। वो सभी का क्रश है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबके। सब लोग बेला चाव इसके चक्कर में। यस मैंने गाया भी है इन द होप कि वो देख ले। जरूर देखेंगे। अच्छा, अभी आई एम होपिंग, बिकॉज आप लोग इतने अच्छे बच्चे थे, तो आई एम होपिंग कि ऐसा कोई झूठ था जो आप लोग ऐसा कोई झूठ जिस आप लोग पकड़े गए थे उस झूठ में, और काफी डर गए थे कि हमारा ये झूठ पकड़ा है। ऐसा कोई झूठ था आप लोग का? क्या नहीं था। जो कुछ झूठ बोला वो तो पकड़े नहीं गए पहली बार। झूठ भी नहीं बोलते थे? नहीं झूठ बोलते होंगे, ऑब्वियसली सब बोलते हैं, बट पकड़े नहीं गए। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कम से कम ऐसा झूठ बोले जिसमें आप लोग पकड़े नहीं गए थे, लेकिन काफी बड़ा झूठ था कि भाई नहीं पकड़े गए। नहीं ऐसे बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते थे हम। हमने बहुत ना शांत और अच्छा जीवन जिया है बचपन से ही। बुड्ढों की तरह। और हमारी वैसे भी टीम थी ना, तो ऐसा कुछ तो हम जब करते थे कुछ तो साथ में करते थे, फंसते भी साथ में थे, निकलते भी साथ में थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला किया नहीं। और हम इंटेलिजेंट बच्चे थे शुरू से। हाँ मतलब हम बहुत मतलब पढ़ाई में भी अच्छे और गाने में वेरी सिंसियर एक्चुअली हमने जब मैं 5 साल की थी तब से लाइक आई एम सिंगिंग एंड शी आल्सो स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। सो टाइम ही नहीं मिलता था, सच बताऊं, या तो गा रहे होते थे हम या पढ़ रहे होते थे, तो इसके बाद कहाँ टाइम मिलेगा कि हम खेलने जाएं या शैतानियां करें। तो इट वाज लाइक वेरी साफ सुथरा सा चाइल्डहुड, बिना मार हमारा ना नेचर पापा पे गया कि जो भी काम करते हैं ना हमको ऐसा होता है कि बहुत एक्सेल करना है, मतलब काम बहुत एक्सीलेंट करना है। तो अगर हम पढ़ाई करते थे तो बहुत सिंसियरली कि टॉप करना चाहिए, और अगर रियाज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रियाज करें। तो ऐसे वाली शरारतें हमने नहीं की कि वो गली के बच्चों के साथ खेलना। हमारी पूरी घर जो मतलब गली थी उसमें हम एक बच्चे का भी नाम नहीं जानते थे, हम कभी किसी के साथ खेले नहीं, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो जब शरीफों वाला बचपन था हमारा। जो शैतानियां ही नहीं थी, शरारते नहीं थे, तो फिर झूठ का तो गुंजाइश ही नहीं है ना। या ओके, सही बात। बिल्कुल। ओके, एक अभी हम ज्यादा शरारती है। अभी आप लोग ज्यादा शरारती। अच्छा, तो अभी ऐसा कोई झूठ बोला आप लोग ने? ये देखना, झूठ नहीं बोलना पड़ता। The name of the section is यादें, so we're talking about चैलेंज। नहीं यादें तो हो गई, अभी तो spilling the sibling secrets है। अभी यादें हो गई, इसलिए तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है। ओके, the one thing you all would like to borrow from each other, ऐसी कोई क्वालिटी? बोरोइंग से ऐसा है कि मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है, मगर जब भी कहीं जाना होता है मेरी बहुत बुरी आदत है इसकी अलमारी खोल के इसके कपड़े पहन के जाना। राइट नाउ आल्सो वेयरिंग इसके पास 2 अलमारी है तो एकदम चकाचक भरी है, जगह नहीं अलमारी की, मतलब अलमारी को सांस नहीं आएगी इतनी यहाँ तक भरी है। लेकिन कुछ भी होगा
मामा जार की अलमारी खोलना, व्हाट इज दिस? मैंने कहा यार ये क्या है? I borrow clothes for her from her all the time. Yeah. आपको कभी गुस्सा आता है इस बात पे? और नहीं, मुझे बहुत मजा आता है कि पहन मेरे पहन. Good. बच गई. चलो, शायद that is और मैं इसके शूज बोरो करना चाहूंगी, लेकिन इट्स वेरी पर्टिकुलर. Yeah. वो शूज से बहुत ज्यादा प्यार है. आप इसके मतलब एक बार जान ले सकते हो, लेकिन जूते नहीं मांग सकते. शी इज वेरी हैप्पी कि इसका और मेरा शू साइज डिफरेंट है. Okay. She has like so many shoes. So you have got a shoe fetish. I can't share my shoes. You got a proper shoe fetish. Yeah. I see. Okay, that's nice. Yes. She can't share it. Yeah, I can't share my shoes. I have to clean them every time I wear them. So yeah, I'm very particular about my shoes. Yeah, I can understand that. I know people with shoe fetishes. I totally get that. Okay, and the last one, when it comes to spilling the sibling secrets, the one celebrity y'all wish y'all could be with. That one celebrity. Like be with normally ना, घूमना फिरना. जैसे आप लोग चाहे, आपको की मर्जी. Right now it's the professor. Right now, yeah, he is the one. For Yeah. both of y'all. For both of y'all. Please choose someone other. Okay, Ranveer Singh. I like Ranveer Singh a lot. Okay. मुझे बहुत पसंद है. Okay, so you have booked Leave the professor to me. Yes. The next छोड़ दिया heist, मैं, मतलब ठीक है, बड़ी बहन हो गई. the professor is going to plan his next heist with Aziz alone. It's going to be you and the professor on the next heist. Yeah, wow. This I won't allow. Berlin, Tokyo, Yes. you know, everyone is gone. No, not everyone. I love them also, so let them be there. I was going to say the professor and I don't know, probably Chandigarh. Your name would be Chandigarh. Chandigarh. Mumbai is fine for me. Okay, Mumbai. Okay. Yeah. The third segment, now that we are done with spilling the sibling secrets, is going to get a little more interesting. The third segment is going to be sibling rivalry, where I'm going to ask each of your questions, and who answers the question gets the point. And if I'm asking a question to both of you all, then who answers the question first gets the point. Okay? Okay, we have to do this for the buzzer. Just answer first. Okay. Fine. Let's get started. Yes. But the first one is going to be for Aziz. You have to tell me Didar's first song. The first song was the Shabad she released with me only. But if you're talking particularly about particularly song, that was Chori Chori on Z Music Company. Yes. Is she right, Aziz? Is she right, Didar? She's right. Yeah. Okay, fine. Come on, Yes. I can't forget her releases. Yeah. Chalo, Okay. next. So let's see whether Didar remembers your first song just as well. Oh, I know the video. That was Bandiya. Bandiya नहीं. Z Music Company पे ही था और इतनी beautiful लग रही थी वीडियो में. गाने का नाम बताया जाए. अरे नाम यार. चाहिए. Give up? You remember, of course. Of course, I remember. I can act like her. She's doing like this. She's very beautiful. She's hanging the backpack. Okay. कौन सा गाना है? तो पूरा रामायण तो पता चल गया, बस राम बाकी. राम कौन है नहीं पता. हाँ. तेरा D से शुरू होता है. चलो. You're giving a hint. That's a really supportive sister. Yeah. मुझे फिर भी टाइटल का नाम नहीं याद आ रहा. मैं बता दूँ. चलो, I got a point. Yeah, you got. Yeah, Then you I'll got a point. answer. You got a point. You're leading. Definitely you got a point. दिलदारा. अरे यार. इतनी बहन है यार, एक गाना अभी भी didn't get that. मेरी गलती नहीं है. See, अभी मेरे गाने थोड़े से हैं तो इसलिए इसको याद है. अभी मैंने स्टार्ट किया है गाना गाना. we talking about the first song. लेकिन अभी इसके इतने सारे गाने आ गए तो थोड़ा सा इसका लिए मुझे ऐसा हो सकता है कि कितने मतलब मुझे 15 याद आ रहा था. हाँ, लेकिन ये जो भी इसका एक first गाना है That was the second song. Yeah. Aziz to be हाँ तो fair, ठीक है, आप उसके साथ हो, मुझे पता लग गया. Yeah, that's the best thing about him. Aziz to be fair, you admitted that you first wanted a boy. You first wanted a brother. Yeah. Probably that's why she doesn't Again, remember your first Frozen. song. You did say. Yeah, it could be the reason. Yes. क्या बात है मेरा ही मतलब आंसर मेरे पे यूज किया जा रहा है. Very good. Okay. Two And questions truly, I done. have a brother now. Two questions done. The third one. Didar needs to tell me this. How many films has Aziz sung in? Not only film song, but how many movies has she sung in? How many? Movies. ये तो इसको भी नहीं पता होगा. मैं कुछ भी बोलूंगी ना, she can't answer. In fact, मैं उसको कहती हूँ कि बहन, at least count how many songs you have sung. She doesn't.
Even I don't know, Baba. Songs थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने songs नहीं पूछा, मैंने सिर्फ films पूछा. वो भी उसको नहीं पता होगा. You are very generous with this, but मुझे भी नहीं पता actually कि मैंने कितनी films के लिए गाया. Because I don't want to keep a count. मुझे लगता है I'll start counting तो नजर लग जाएगी, so I don't want to do that. इसके लिए मैंने इसको बोला था कि I'll do a task, मैं पूरा बनाती हूँ लिस्ट, तो उसने बोला नहीं बहन रहने दे, तो मैंने कहा ओके. मैं जब रिटायर होंगी तब मैं बैठ के गिनूंगी मैंने कितने गाने गाए हैं. Okay, so anyways, so I think so we could give that consolatory point to Didar because Asis herself said that she doesn't. Asis, you need Yeah. to tell me what has been Didar's favorite song since childhood. It keeps on changing. Yeah, it keeps on changing, but I So think you it don't has have a to be favorite? somewhere. Something very close to her heart. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. This is Madam Nuja's song. I think it has to be a closer answer. It is a very favorite song of mine, लेकिन ये बचपन में तो गाना मैंने सुना नहीं. अरे यार जब से अभी के लिए you can say I like this song. बचपन में तो कहाँ मुझे समझ नहीं आता. बचपन में हम गुरबानी गाते थे बहुत ज्यादा. We started listening songs at a very like around I think when I was in class 10th or 12th. उसमें सब गुरबानी सुनते थे. तो या तो बचपन तक तो हम जा ही नहीं सकते. हाँ नहीं जा सकते. इसको भी दे दो मुझे पॉइंट दे दो. दे दिया. Okay. The next questions are for both of y'all. Y'all have let's see who answers first. The name of your school principal. Mrs. Nath. प्रिंसिपल मीनू हुड्डा. मेरे टाइम तो वही थी. मेरे टाइम पे मिसेस मीनू हुड्डा मेरे टाइम वो थी. आपके टाइम तुम्हारे टाइम पे मिसेस मिसेस ऋतु बरवा बाद में. बट यार मैंने आंसर पहले दिया. इसने चेयरपर्सन का नाम दिया है तो गलत है. I mean that now Asis is showing why she was the most studious one at school. Okay. 10th standard result किसको याद है? 10th 80%. 90%. I was student but I was 80%. But she answered first. 12th में दोनों का 12th 90%. 92. Okay. She 12th में answered. दोनों का 92 12th में. The first movie y'all watched together in a theater. हम आपके हैं कौन? I don't remember. मुझे याद है उसमें कि कमल नाम का सिनेमा होता था हमारे वहाँ गए थे हम देखने. Yes. हम आपके हैं कौन? Asis is छोटी killing it. She's killing it. In No, this how is she killing? Of course I am. हेलो मुझसे कितने साल छोटी हो तो मेरी मतलब बचपन की याद वो नहीं होगी ना उसकी जब होगी। फर्स्ट मूवी थी. साथ मैं और में कितने साथ छोटी में तुम साथ में थे उस तो साथ में मैं छोटी थी ना तो मैं हाँ बच्ची तो कोई थी. बात नहीं थी तो सही. अब ऐसे Sibling गोदी में rivalry होगी तो दिख रहा है. how can I remember? The पूरा complete sibling rivalry दिख रहा है यहाँ पे. Okay. Yes. Okay. कहीं तो देखा. Either you need to tell me the one thing Asis cannot live without. Very Her easy. phone. Hmm. You can't live without it. Okay. Very easy. It was very easy. But then how easy would it be for you, Asis? The one thing Didar cannot live without. Me. And I need a thing. Vastu Not inside. valid, not valid. Her has to be her family. Her family is also not a thing. Of So course then it's her not. phone only. It's not Well, like this. You can Many times my phone is inside and I'm outside. She's not agreeing. Then she can't live without me. The only person or thing she can't live without me is me. I'll get the point. तो अच्छा Got तू his बता दे point? चीज बता. Yeah, okay, you got this point, but Asis got a lot of points before this. Yes. Yes. Okay, I'm not playing. Okay. मगर क्या है वो चीज क्या है जिसके बिना तुम नहीं रह सकती? मेरे लिए ऐसी कोई चीज ही नहीं है. I'm not very materialistic thing. मतलब You're मुझे not ऐसा very नहीं कि materialistic. Okay. हाँ. Finally, But I am. लास्ट क्वेश्चन. अभी आप लोग ने कहा था कि आप लोग ज्यादा टीवी नहीं देखते थे. फाइनली बाद में टीवी देखना शुरू किया था. So I'm not, but let us see whether you all remember this or not, because growing up in the 90s, most kids do know this. The first reality show of Indian television. reality show. सारे गामा पा. सारे का हो सकता है. इंटरनेट तो बाद में आया. सारे गामा होता था उस समय. I think अगर ये है तो. नहीं, म्यूजिकल शो तो है ही नहीं. अच्छा है ही नहीं तो फिर नहीं बता. चांस ही नहीं है. फिर नहीं बता हमें. चांस ही नहीं. बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट. Oh, I don't know. बॉर्न मुझे भी नहीं पता था. हाँ बॉर्नविटा वैसे यही पीती थी इससे. हाँ मैं बीती थी. मैं इसकी हाइट लंबी होने का रीजन भी यही है कि मुझे दूध बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. मुझे वो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर था एनसिफ किसी कंपनी का था. बहुत टेस्टी था. उसकी वजह से मैं पीती थी और और ये लंबी हो गई मुझसे उसके बाद. थैंकफुली. फाइन. ये थी हमारी हाँ. सिबलिंग राइवलरी. और सिबलिंग राइवलरी आई हैव टू से दैट Asis हैज won it by a pretty big margin. This is not fair. She राइवलरी में has- जीत रही हूँ.
देखिए जो उन्होंने आंसर्स दिया है उसका मैंने पॉइंट्स देना एंड शी विल वन बाय अ प्रीटी बिग मार्जिन। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन मत दो, आई गॉट इट। Okay, but let's see this the next one who is more likely to do what, क्योंकि हमारे next round का नाम ही है who's more likely to। I'm excited for this one. मैं आपको So we just have situation दूंगा, you just have to point, Okay. you just have to point Okay. who's more likely to do it, okay? Okay. Yeah. Now आप लोग ने कहा था कि आप लोग मस्तीखोर नहीं थे, फिर भी कभी ना कभी तो एक तो किसी कुछ ने किया होगा, so I just need to know between both of y'all who's the bigger prankster, किसने ज्यादा Who's मस्ती, the bigger prankster? किसने ज्यादा मस्ती की? Asis. Okay, I like the way she Yeah. doing it. Who's the bigger tattler? कौन ज्यादा चुगली करता है? चुगली चुगली नहीं करते हम, करनी भी होगी तो करनी भी होगी तो मतलब उसने Okay. पूछा तो। Okay, उसने पूछा तो। Who's the bigger hothead? हॉट हेडेड हाँ, दीदार। Okay, लेकिन मैं एक और बात बताऊं, बताइए। मैं जनरली गुस्सा कर लेती हूँ, मतलब कोई गलत बात हो तो मुझे गुस्सा आता है और उस सबको डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जब मैडम उस चीज को गुस्सा आता है, वो वंस इन अ वाइल आता है, वो ऐसा आता है कि वो सब डर जाते हैं कि अरे क्या हो गया यार, वो इतनी क्यूट, ऐसे गुस्सा करना नहीं आता। हम बोलते बहन मत कर, तुझे नहीं आता, उसको गुस्सा करना नहीं आता, तो फिर वो हम कहते हैं मत करने लगे। तो once in a while है और वो काफी क्यूट होता है। तो ज्वालामुखी वाला गुस्सा नहीं है, once in a while गुस्सा। वो है, वो इसमें ज्वालामुखी, मेरा ज्वालामुखी वाला ही है, बहुत बुरा गुस्सा है मेरा, अच्छा, जब बुरा आता है तो गुस्सा बहुत है। गंदे तरीके Okay, से। okay. मेरा वाला गुस्सा ऐसा कि लोग कहते हैं मजा आया डांट का। Okay. और इसके साथ प्रॉब्लम भी है कि इसको मनाने में 2-2 दिन लग जाते हैं कभी कभी, राइट। वेरी डिफिकल्ट। Well, last time if I would like to know कि ये ज्वालामुखी कब फटा था? ये अब तो काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। काफी time। लॉकडाउन से पहले ही फटा होगा, अभी तो अच्छा। हमने तो नहीं फटा। ठीक है, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा, यानी कि काफी टाइम गुजर गया, यानी कि एक और इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। Yeah. Yes. It can be around the corner. Okay. हाँ, राइट। Who's the bigger entertainer at the party? शी, एंटरटेनर, पार्टी की चाह। Okay. इंट्रोवर्ट, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। या होटल में आप लोग की स्टे है, so who is more likely to steal toiletries from a hotel? टॉयलिया वगैरह something ऐसा कुछ बैग में डाल के ले जाओ। बैग में डाल के ले जाओ बोला अच्छा नहीं लगता हमें। हाँ, तो कभी But, एक मतलब कुछ भी नहीं ऐसा मारा है होटल से? नहीं, कभी एक आधी बार तो मारा ही होगा, ऐसा भी होता है। कभी कभी शैम्पू ही डालना भूल गए, मुझे ऐसा कभी होता है। पेंसिल्स बहुत अच्छी लगती है। She loves stationeries. I am a fan of like कि वो नोटपैड होता है ना, वो 3-4 पन्नों वाला, आई लव दैट क्यूट सा नोटपैड, सो आई समटाइम टेक दैट और अ पेंसिल, दैट्स इट। तो अगर किसी होटल में हम दोनों ने स्टे किया है, पेंसिल गायब है तो वो कसूरवार है, शैम्पू गायब है तो मैं कसूरवार हूँ। Okay. पेरेंट्स, आप दोनों में से पेरेंट्स की ज्यादा फेवरेट कौन? पापा की है, मम्मी की मैं। पापा की। So ऐसे जाएगा। पापा मम्मी लगाते हैं। Yeah. फाइन। और मीन आप दोनों तो सिंगर, तो दोनों तो कमाल के सिंगर्स तो हो ही आप, लेकिन बाथरूम में किसको ज्यादा आदत है सिंगिंग करने? क्या? बाथरूम सिंगर कौन है? हमारे घर में सभी जरूरत बाथरूम ही में नहीं। गाएंगे ना, भाई सिंगर है तो मुंह बंद नहीं होता हमारा है। मुंह सारा दिन हम हमारे पड़ोसी डाइनिंग रूम सिंगर है, हम किचन सिंगर है, हम बाथरूम सिंगर है, हम हर कमरे के सिंगर है। और बाथरूम में ना एक रिवर्ब इको बहुत There's a अच्छा very आता nice है। reverb, yeah. तो हमारे कई बार कभी रात को 2-3 बजे रियाज कर रहे हैं, गए हैं वॉशरूम और गा रहे हैं, हम तो आराम से मस्ती में ऊंचा गा रहे हैं, तो लोग कहते हैं सुबह 2-3 बजे ना बहुत मीठी ऐसे ऊंची आवाज आती है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार मम्मी को ऐसा आया था तो हम तो डर गए थे, कंप्लेंट हो गई तो, लेकिन सामने से बोला लेकिन बहुत मजा आता है, आपकी बेटियों की आवाज आती है, तो मम्मी डर गई, लेकिन फिर कहती अच्छा लगता है, तो हम कहते शुक्र है, नहीं तो बाहर निकाल देते। Okay. और ये फाइनल वाला है, who's more likely to have a midnight snack? बहुत अच्छा, y'all both हमारा like midnight फैक्ट है, हम खाना साथ में खाते हैं। और इतने क्यूट है हम, मतलब दोनों की अगर डाइट चल रही है तो मैं उसको मनाऊंगी, बहन चल खा लेते हैं ना, वो मुझे मनाएगी, तो फिर मान के हम दोनों खा लेते हैं। तो अगर जिस दिन तो दोनों का मन होगा कि चलो मैगी खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो दोनों की डाइट टूटेगी। अगर दोनों में से एक भी पक्का रह गया तो फिर उस दिन हम भूखे रहते हैं रात को, ऐसा होता है। हेल्दी तो मजा नहीं आता ना खाने में। I must say राइवलरी के बाद ये काफी अच्छा सेगमेंट रहा, क्योंकि राइवलरी तो हम लोगों ने देख लिया, अभी आप दोनों का प्यार भी हमने देख लिया, जिसमें सिबलिंग को। Yes. Okay.
फाइनल वन। प्यार में आप पूछे थे तो सारे नहीं पॉइंट्स। नहीं, इसमें तो मैं जीती। इसमें किसी को जीतना ही नहीं था। हाँ, कुछ ये जीतना ही प्यार नहीं था, प्यार प्यार। ये तो प्यार है, इसमें तो किसी को जीतना ही नहीं है। जीतना तो Yeah. राइवलरी में होता है ना, जो असीस See, Yes, ठीक है, ज्यादा ब्रांड I love- को जिता लो, आई एम फाइन। I love to win. Okay. Finally, the last segment, which is called हर पिक्चर कुछ कहता है. We are going to show you some images, and we would like to know the story behind those images. Okay. Interesting, huh? Okay. I'm going to be sharing my screen with you all. So this looks like a party or something. I would like you all to narrate what's the story behind this picture. ये रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स पे हमारी पिक है और असीस की परफॉर्मेंस आई थिंक 5-10 मिनट पहले की पिक है, सो वी वर वेरी एक्साइटेड। ये पिक तब की है। Okay. This seems like a I love lovely. this pic. Yeah. ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। This is one of our favorite pictures, and this is from a recording studio जहाँ हम दोनों अपना गाना साथ में डब करने गए थे. The song was WhatsApp song. So we dubbed it together. और this is basically the आशीर्वाद I'm taking from her because I had to go in the recording studio to dub the song. Yeah. So मैं कहती थी कि बहन आशीर्वाद दे दे, मैं भी गाने I was like, yeah, okay, So this is my way of taking the blessings. और आशीर्वाद काम आया? बिल्कुल आया। बिल्कुल आया। दिल से दिया था, दिल से। Okay. The third one, matching. You all are twinning, literally twinning with your t-shirts. Over. Yes. Yeah, we do that a lot of time. Yeah. So Unconsciously. This is from a birthday party we were at, and वहाँ केक वे कट रहा था और हम अपना सेल्फीज में बिजी थे, तो ऐसा था. Okay, so this was a birthday. It was a random one. I just asked her to come in my camera and we clicked it. Yeah. Ethnic time. Yay! ये कौन सी पिक्चर है? ये अभी हमारा रिसेंटली गाना रिलीज हुआ है राजा गणपति ऑन टाइम्स म्यूजिक ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, और उसके शूट का ये पिक है। ये बहुत रीसेंट पिक है, आई थिंक अ वीक बैक। ओके वाह, ये बहुत ही प्यारी पिक है। ये किसकी है? ये सबसे प्यारी बच्ची हुई है हमारे घर में। हाँ, हमारे खानदान में, पूरे खानदान में सबसे क्यूट बच्ची। राइट। नाउ यू कैन टेल हु इज शी। या ऑब्वियसली दिस आशीष। या तो ये मेरी पिक्चर है, और आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट बर्थडे। आई डोंट थिंक डेफिनेटली दिस वाज माय फर्स्ट बर्थडे। और बटरफ्लाई का केक बना था मेरे लिए, एक बहुत बड़ा केक। आई मस्ट टेल यू, इसके सभी बर्थडेज पे बहुत ही स्पेशल और डेकोरेटिव बड़े केक्स आते थे, और मेरे बर्थडे पे 11 साल तक मैंने केक नहीं काटा। क्यों? आप देख रहे हो। आई डोंट नो, वो बोर हो गए ना दूसरे बच्चे तक मेरे घर वाले। आई डोंट नो, एक बार तो मेरा ये लोग बर्थडे भूल गए थे, क्योंकि मेरा बर्थडे 16th को होता है, 17th को मेरी बुआ की शादी थी। तो 16th रात को सडनली मेरी बुआ को याद आया कि, मतलब मेरी बुआ इन द सेंस हमने बुआएं बांट रही हैं, उन्हीं मेरी बुआ की शादी थी, तो उनको याद आया अरे आज तो दीदार का बर्थडे है, सो आई कट पेस्ट्री एट दैट टाइम। देखो मतलब क्या बताऊं मैं, इसके इतने बड़े केक आते थे, इतने बड़े बटरफ्लाई एंड डिफरेंट केक्स। बट या दैट इज फॉर माय फर्स्ट बर्थडे। तो काफी गुस्सा आया होगा आपको दीदा इस बात? अरे मैं बहुत भोली थी बचपन में, मुझे ये सब पता नहीं था। बड़े होके मुझे पता लगा कि गुस्सा करना होता है यार, ये क्या। अच्छा, तो आज तब तक तो आशीष केक पे केक ले जाती थी। केक पे केक का, अरे मैं इसका कटा हुआ केक फिर काटती थी और खुश हो जाती थी कि मैंने केक काटा। आशीष नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अरे मैंने बचपन में बहुत मजे किए हैं। अब मैं शरारतों की बात बताऊं तो देयर वाज अ कार जो मतलब पेडल से चलती थी, तो दीदार के लिए आई थी वो कार। उसका नाम था 1000। मुझे ड्राइविंग का बचपन से शौक है, अभी भी ड्राइव अ लॉट। तो इसके लिए वो कार आई, और इसके साइज के हिसाब से तो शी कैन पेडल एंड उसको चला सकती थी। मेरी हाइट उसके अंदर एडजस्ट होती थी, तो मेरी हाइट तब उससे छोटी होती थी, तब तक मैंने वो नहीं पिया था। आपने पीना शुरू नहीं किया था। तो मैं बड़ी होती थी और मेरा पेडल चलता नहीं था, क्योंकि मेरी टांगे बड़ी होती थी तो वो आती नहीं थी उसमें। तो मैं इसको पूरे घर में कहती धक्का मार मुझे, और मुझे धक्का मारती थी। मैं पूरी कार चलाती थी एकदम मजे से, पूरे वरांडा में मैं इसको धक्का मार के ऐसे पूरी गाड़ी, मतलब ऐसे बोलती थी कि पहले तू मुझे धक्का मार के गाड़ी चलवा, फिर मैं चलवाऊंगी। और महारानी को मतलब पूरे घर में नहीं कि सिर्फ वरांडा में आराम से ऐसे चक्कर लगा ले, नहीं, हर दरवाजे हर कमरे में इसको जाना होता था। और पहले वो ऐसे डबल साइड खुलने वाले दरवाजे होते थे, जाली वाला अलग, लक्कड़ वाला अलग। मैं बेचारी शरीफ पहले तो जाली वाले खोलती थी, फिर 2 लक्कड़ वाले खोल कर उनको स्टॉपर लगाती थी, गाड़ी अंदर लेके जाती थी। इतना सा तो कमरा होता है, लेके जाओ, बाहर लेके आओ, फिर चारों बंद करती थी,
फिर दूसरा कमरा, ऐसे करके पूरे घर का आधा पौना घंटा इसको चक्कर लगवाती थी। और जब मेरी बारी आती थी, मैं सच्ची बताऊं क्या करती थी, एक सिर्फ ऐसे धक्का मार देती थी बस खत्म। और बोलती थी चल आगे। तो मैंने कहा क्या, तेरे तो पैर जाते हैं ना, चल आगे। और मुझे कभी बचपन में समझ नहीं आया कैसे नहीं करना होता। तो मैंने बचपन में इसके बहुत मजे लिए। दिस इज द प्रैंक। मैं जब शरारतों के बारे में पूछ रहा था तब आपने ये क्यों नहीं बताया? तो ये शरारत इतना मेरे बचपन आता है। मेरा बोली थी मैं बचपन क्या आता। करूं, बट ये शरारतें छोटी छोटी आपस में की हमने, बाहर हाँ, नहीं की। मतलब आप मैं आपने बचपन में घरों इससे से। बहुत डरती थी, मैं कांपती थी इसके सामने, मुझे इतना डर लगता था इससे। आपने और बेचारी मैं इसको कभी ना मम्मी को शिकायत लगाती थी ना, तो ऐसे बोलती थी मम्मा आप उसको बोलना मत कि मैंने आपको बताया। इतना डरती थी मैं इससे, बहुत डरती थी, कांपती थी ऐसे आप डर। बेचारी दीदार को काफी बुली कर जो देखो ना, लेकिन उसका बदला ले लिया मैंने, अब बड़े बदला होके। ले लिया। अब मैं डरती हूँ, आई थिंक 10 गुना ज्यादा डरती हूँ मैं। जब जितना डराया सब वापस कर रही हूँ। इंटरेस्ट के साथ। मतलब कि वो बचपन का दौर था, अभी हमेशा फॉर लाइफ लॉन्ग आपको इससे डरना फिर मैं सीए बन गई ना, तो मैंने या सूद समेत वापस सूद समेत। हाँ। फाइनली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आखिरी पिक्चर ये तो क्यों? ये हमारे खानदान की दूसरी प्यारी बच्ची है। ये एक्चुअली ये इसका नाइट सूट बहुत क्यूट था। तो जैसे ये सोकर उठी थी तो इसको लेकर गए हम फोटो स्टूडियो और वहां जाके बिठा दिया। ये बहुत रोती थी पिक्चर्स कराने के टाइम। तो इसमें पता नहीं क्या नींद में थी शायद, इसलिए रो नहीं रही है। तो हमने बोला भैया फटाफट फोटो खींचो इसकी। So yeah, that is one story behind this one. नाइस स्टोरी। सो एनीवे, सो ये थी हमारी सेगमेंट्स। आज हमने आपके वी केम टू नो योर यादें। आप लोग ने सिबलिंग सीक्रेट्स, ज्यादा सीक्रेट्स तो थे नहीं आप लोग के, इतना थे आप लोग ने स्पिल किया। सिबलिंग राइवलरी में काफी मजा आया, स्पेशली असीस को। ओके, who's more likely to, उसमें तो आप लोग का बराबर था। एंड best, my favorite segment for you, both of you all, was Har Picture Kuch Kehta, because we got to know so many fantastic, amazing stories from both of you, especially how you used to bully your younger sister. Yes. Yeah. Sorry about that. But I can safely say that without a doubt, without an iota of doubt, you all definitely get #sibling goals, because this is exactly the kind of sibling. This is exactly the kind of, apnapan, the pyar, the nok joke, the takrar, that people, really remember about their brothers, their sisters, and it's fantastic to know this about you. Amazing. Thank you so much for doing Siblings Confidential with us. Before going, if you all want to give a message to all the siblings out there, to your fans who always are growing up, how you all grew up, if you want to give a message to them. I think I would like to say कि family is something which is very important in our lives, and आपको भी हमेशा अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को बहुत क्लोज रखना चाहिए, उनके साथ स्पेंड करना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए, because ultimately that is what all matters. This is irreplaceable. Yeah, this is my message to all the fans and followers. Always stay close to your family. Yeah. Thank you so much. That was so sweet of yours. And thank you for doing this. Thank you for doing this. It was amazing, both your song and the Siblings Confidential interview. Thank you so much. Thank you. Really looking forward. बहुत मजा आया. When you are releasing this, I am really excited to share this with everybody. Definitely going to be sending all the links. Yeah. Thank you. See you soon. Same here. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.